Hi, 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 hi. How are you? Let us start the discussion of the GOC. To this is 8 to 9 lecture. Eighth lecture, I think so. Previously, we have studied about yes hot alkaline camenophore. In this reaction, we have studied that the alpha carbon, alpha carbon that is converted into the carboxylic acid, and the alpha carbon it must contain what? It must contain alpha hydrogen. If alpha carbon do not possesses any alpha hydrogen, then this reaction will not occurs, right? So from continuing from the previous part, can you think that this compound will give you the reaction with the hot alkaline KMnO4? The answer is no. Why? Because if you see there is alpha carbon, yes, fine. But what happens? There is no alpha hydrogen is present here, so no reaction take place. No alpha hydrogen present in that compound, and that's why no reactions takes place. Okay. इसके बाद no alpha hydrogen, no alpha hydrogen, no alpha hydrogen, no reactions take place. The prerequisite condition for this reaction, it should have alpha hydrogen. If you see in this case, this compound, if you see this compound, yes, this has alpha carbon, and there is a minimum one alpha hydrogen that is present here. One alpha hydrogen that is present here. So why this reaction will occurs? इसलिए ये रिएक्शन होंगे क्योंकि यहाँ अभी भी अल्फा हाइड्रोजन है, और अल्फा हाइड्रोजन है तो अल्फा हाइड्रोजन है तो अल्फा कार्बन को ही हम क्या बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे। तो इसी पार्ट को हम कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हुए यहाँ पे क्या हो जाएगा, COOH हो जाएगा। ठीक है, ओके। And the next is if you take another case, in this case, these type of the compound, we called it as a naphthalene type of the compound. Naphthalene, that means a benzene series compound. Benzene series compound contains three kinds: benzene, naphthalene, anthracene, and anthrene. And all this compound, the structure is very important. And these series are the naphthalene series, right? And if you see in the naphthalene series, what happens that you have to follow this. You have to take this part and this part. That means hot alkaline KMnO4 do what? It cleaves this bond into the symmetrical way. Symmetrical way में इसको क्या करता है, वो तोड़ देता है। तो ये जो हम स्क्वायर पे जो सर्कल लगाए हैं, इस स्क्वायर वाले सर्कल स्क्वायर वाले कार्बन पे क्या करेंगे हम लोग, COOH बना देंगे, दैट विल बिकम। ठीक है, अगर इसमें बोला जाए किसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, तो बोले कि इस कार्बन का और इस कार्बन का हुआ है, तब जाकर के यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ है। तो you have to remember, if in the naphthalene, if there is a if there is one ring get oxidized, ठीक है, और other ring is remains as usual। ठीक है, यहाँ पे समझना ये है कि this is different case. This case is very different, and don't think of the alpha hydrogen is present here or not। ठीक है, अच्छा यहाँ पे रहा बात कि लेफ्ट में या राइट में,
फिर विल स्टार्ट। लेफ्ट में करना है या राइट में करना है तो आप कहीं भी कर लो भाई, प्रोडक्ट तो आपको वही मिलने वाला। मतलब यू हैव टू ऑक्सीडाइज वन रिंग, यू हैव टू ऑक्सीडाइज वन रिंग विल बी ऑक्सीडाइज्ड। बात समझ में आया? लेकिन there is some selectivity. What happens if suppose in the naphthalene group if we have the chance कि हम इसको करना चाह रहे हैं या तो इसको करना चाह रहे हैं, मैंने क्या किया है कि हमने इस रिंग को ऑक्सीडाइज करके COOH लगा दिया। देख रहे हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? इसका रीजन क्या है? बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन हो गया, है ना? आप इसको बनाएंगे कैसे? हाउ यू प्रिपेयर दैट? एंड दिस रिएक्शन you have to follow one rule, and according to my rule you have to see MARO. And what is MARO? That is more activated ring will oxidize. आपको मारना नहीं है, यहाँ पे समझना चाहिए कि मोर एक्टिवेटेड रिंग ही आपको क्या होगा? ऑक्सीडाइज्ड होगा। मारो तो याद होगा, मारो मारो मारो, ठीक है? मारो से याद क्या रखना है कि मोर एक्टिवेटेड रिंग विल बी ऑक्सीडाइज्ड। दैट मींस मोर एक्टिवेटेड का मतलब क्या होगा? मोर एक्टिवेटेड का मतलब होगा जिस रिंग में प्लस एम हो, ठीक है? जिस रिंग में प्लस एम हो तो क्या होगा? दैट विल बिकम मोर एक्टिवेटेड। जिस रिंग में माइनस एम हो वो क्या होगा? लेस एक्टिवेटेड। प्लस एम वाला क्या होगा? प्लस एम वाला मोर एक्टिवेटेड। तो लिख लो, ठीक है? एक्टिवेटेड का स्पेलिंग नीचे गलत है, activated, right? You have to write all this thing, all right? ये क्वेश्चन एक बच्चा पूछा था, मतलब इधर ही रिसेंटली 2 से 3 महीना पहले कि सर रिएक्शन क्या होगा, इसका आंसर क्या है? हम बोले इसका आंसर क्या है? मारो, ठीक है? वो याद हो गया उसको। देखो नेक्स्ट है कि if you see which ring is more activated here and you think of in this there is a plus M group, OMe is the plus M group। अच्छा, NO2 के बारे में बाद में बात करेंगे। OMe क्या है? प्लस एम ग्रुप है, एंड द प्लस एम ग्रुप दैट मीन्स इट दिस रिंग विल बी मोर एक्टिवेटेड। स्टेप वाइज चलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? रिंग एक्टिवेट हो रहा है, OMe एक्टिवेट नहीं हो रहा है। पहला चीज, रिंग को एक्टिवेट कौन कर रहा है? OMe। OMe के अलावा कौन कौन हो सकते हैं? OMe बोल रहा है कि मेरे अलावा क्या क्या हो सकते हैं जो प्लस एम इफेक्ट वाले जो ग्रुप है। प्लस एम इफेक्ट वाले कौन कौन से ग्रुप हैं? जिनमें NH2 लगा हुआ है, OR लगा हुआ है। आपको क्या करना है कि प्लस एम वाले ग्रुप कौन कौन से हैं वो रिंग को क्या करते हैं? एक्टिवेट करते हैं। सिंपल सा बात है, मोर एक्टिवेटेड ग्रुप लगाओगे, प्लस एम ग्रुप लगाओगे तो रिंग बिकम मोर एक्टिवेटेड। और मोर एक्टिवेटेड का मतलब क्या है कि मोर एक्टिवेटेड का मतलब है कि रिंग में क्या होगा? मोर एक्टिवेटेड मतलब रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा और जिसकी वजह से वो रिंग क्या होगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है? आपको ये रूल्स याद रखना है, मारो, ठीक है? अब रहा बात कि मैं यहाँ पे जो रिंग एक्टिवेटेड नहीं है मैं उसका कलर चेंज करके कर दे रहा हूँ सपोज ग्रीन। क्लियर हो गया? तो ग्रीन से ग्रीन,
कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कौन सा कार्बन निकलेगा? लोग है। अब बात समझ में आया? ये कार्बोक्सिलिक एसिड COH कहाँ से आया हम बोलेंगे? इस कार्बन से, और इस कार्बन से क्या आया है? ये ग्रुप आया। क्लियर हो गया? सेकेंड स्टेप में देखो जरा, इन द सेकेंड स्टेप व्हाट विल यू सी कि ये रिंग एज कंपेयर टू द राइट रिंग वो क्या होगा, ज्यादा एक्टिवेटेड होगा, क्योंकि NO2 लगने से -M ग्रुप आ गया है, और -M ग्रुप क्या कर रहा है? रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है। If the ring is deactivated, that means this ring is deactivated more than benzene. मतलब benzene is more activated than this ring. अब यहाँ पे बेंजीन ज्यादा एक्टिवेटेड हो गया है इस रिंग से, तो बेंजीन अगर ज्यादा एक्टिवेट हो गया है तो किसका ऑक्सीडेशन होगा? बेंजीन का होगा, जिसकी वजह से, समझ में आ रहा ना, ऐसे रिएक्शंस होते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पे 3 केस लगाया हूँ, ठीक है। रूल ये क्या याद रखना है? मारो NO2 showing -M इफेक्ट, एंड -M ग्रुप कौन कौन से हैं? CHO, COOH, NO2, CN, ठीक है। अभी के लिए समझना है कि -M +M वाले ग्रुप कौन कौन से होते हैं। आप उनको देख के समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक और समझते हैं यहाँ पे, देखो मैं रिंग को क्या कर रहा हूँ? सिमेट्रिकली काट रहा हूँ। जब ऐसे डबल बॉन्ड होंगे तो हॉट अल्कलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में क्या होंगे? टूटने के बाद ये कार्बोक्सिलिक एसिड देंगे। तो इधर वाला पार्ट टूट गया तो कार्बोक्सिलिक एसिड कितने कार्बन का होगा? 1 और 2 कार्बन का होगा। इसका मतलब है कि हम इस पार्ट को आधा सिमेट्रिकली काट देंगे, आधा इधर से काट देंगे, तो यू सी दिस डबल बॉन्ड इज क्लिप्ड इन बिटवीन। डबल बॉन्ड को इन बिटवीन में क्या करेंगे? काट देंगे, और काटने के बाद डबल बॉन्ड वाले कार्बन जो है उनको कार्बोक्सिलिक एसिड बना देंगे। तो ऐसा किसके किसके साथ है? एक तुम्हारा अल्काइन के साथ भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा उसको आधा काटने से, ठीक है। एक ये भी इनॉल इसको बोलते हैं, ये भी हो जाएगा, और एक कीटो। अच्छा, कीटो में एक बात बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। कीटो को में समझना यही है कि कार्बोक्सिलिक एसिड ये बन रहा है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ये बन गया। इनोल में भी क्या है? डबल बॉन्ड की वजह से क्या हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। लेकिन सबसे यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। एक बार फिर से देख लो रिएक्शन कि समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। रिएक्शन समझ में आ रहा है कि नहीं? डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को बीच बीच में तोड़ करके कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दे, बस 4 कार्बन का होगा तो 2 कार्बन टूट जाएगा, लेकिन बीच से हम तोड़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन कंडीशन यहाँ पे अप्लाई अगर करते हैं, सपोज हम अगर इसको ऐसे तोड़ दें, ठीक है, तो यहाँ पे 2 मोल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। बट द थिंग इज दैट हाउ आई एम ब्रेकिंग दैट, आई एम ब्रेकिंग दैट फ्रॉम दिस पॉइंट। हम इस पॉइंट से क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं। और समझना ये है कि ये पार्ट CH3CO है, तो CH3CO यहाँ पे क्या लग जाएगा? OH लग जाएगा, समझ में आ रहा है ना। और CH3Ca ये जो पार्ट है ये कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। बात यहाँ पे मैं एक बोलना चाह रहा हूँ कि देयर इज अ रूल, यहाँ पे एक रूल है, उसको बोलते हैं पॉपेफ्स रूल।
पॉपअप्स रूल, ठीक है। मैं इसको डिक्टेट करवा दूंगा, ठीक है ना, डिक्टेट या तो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। हाँ, देखो समझो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है कि मान लो कि कोई अल्कीन अल्काइन और खास करके यहाँ पे कीटोन, पॉपअप्स रूल यही बोलते हैं कि ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, यहाँ पे क्या लिखोगे, पॉपअप्स रूल, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, पॉपअप्स रूल बोलते हैं कि ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ unsymmetrical ketone, CO will be maintained with a smaller alkyl group। देखो अब इसको समझना जरूरी है, क्या बोलना चाह रहा है, ध्यान देना। कीटोन ये तुम्हारा अनसिमेट्रिकल है, इफ यू फाइंड दैट यहाँ पे अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, ठीक है। लेफ्ट साइड में एक अल्काइल ग्रुप है, राइट साइड में दो अल्काइल ग्रुप है, जिसकी वजह से हम बोलेंगे ये जो कीटोन है, दिस कीटोन इज अनसिमेट्रिकल। द थिंग इज दैट अनसिमेट्रिकल है तो सीओ किसके साथ जाएगा, अगर इसको तोड़ें तो सीओ किसके साथ जाएगा, सीओ उसके साथ जाएगा। यहाँ पे देखो मैं जो लिखा हुआ हूँ, सीओ विल बी मेंटेन विद अ स्मॉलर अल्काइल ग्रुप। यहाँ पे तो लेफ्ट साइड में एक अल्काइल ग्रुप है, राइट साइड में दो अल्काइल ग्रुप है, तो सीओ को हम उसके साथ तोड़ेंगे, मतलब सीओ को तोड़ेंगे उसके साथ जहां पे अल्काइल ग्रुप कम हो। मतलब इफ यू ब्रेक दैट, आई एम जस्ट ब्रेकिंग द कंपाउंड, तो जो सीओ जो है, सीओ किसके साथ मेंटेन होगा, जिस अल्काइल ग्रुप का नंबर यहाँ पे क्या है, कम है। तो इसलिए ध्यान देना बच्चे कि यहाँ से CH3COH इस तरह से टूट जाता है, जिसकी वजह से एक CH3COH जो बना यहाँ पे पार्ट ऑफ लेफ्ट साइड पार्ट, मतलब एक CH3COH इधर से बना है और एक CH3COH, दो कार्बन ही तो है, इधर से बना है। बात समझ में आ गया, दिस इज द पॉपअप्स रूल। यहाँ पे ये भी हो सकता है अनसिमेट्रिकल कीटोन, अगर बात करें तो अनसिमेट्रिकल कीटोन में हो सकता है दो तीन, दो लेफ्ट में होगा, तीन राइट में होगा, तो सीओ किसके साथ जाएगा, दो वाले कार्बन के साथ जाएगा। यही है पॉपअप्स रूल हैव डिड एन एक्सपेरिमेंट, समझा ना, ये कीटोन का खास करके ये क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक है। देन आफ्टर मैं एक और चीज बताना चाह रहा हूँ तुम लोग को, जैसे हॉट अल्कलाइन केमनोफोर और हॉट अल्कलाइन केमनोफोर का जो रिएक्शन है, रिएक्शन इज सेम एज, इस रिएक्शन से सेम है। खास करके तो यहाँ पर डबल बॉन्ड जो तोड़ते हैं ना, इस डबल बॉन्ड को तोड़ने का सेम रिएक्शन हम कहाँ से देखेंगे, दैट इज द ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, ठीक है। ये सब मैं करवा चुका हूँ और इसको देख लेना ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होता क्या है, ठीक है। अब ये समझो कि हॉट केमनोफोर हो या तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस हो, प्रोडक्ट तुम्हारा क्या होगा, सेम आएगा। जैसे देखो ये याद करना, ये कंपाउंड को तोड़ते थे तो HCHO CH3CHO, क्लियर हो गया, यहाँ तक तो पहुंचे थे। अब इसी का ही तो ऑक्सीडेशन करते थे, इसका ही हम लोग ऑक्सीडेशन करते थे ना, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन HCHO का जब ऑक्सीडेशन करोगे, दिस विल फॉर्म फार्मिक एसिड, देन कार्बोनिक एसिड, दिस कार्बोनिक एसिड ब्रेक इनटू H2 एंड CO2। ये था तुम्हारा
oxidative ozonolysis. And the product here, if you find that what is the product, and I say the product is product क्या होगा यहाँ पे, H2O, CO2 and this carboxylic acid. You have to see what is the oxidative ozonolysis, and then after you have to think what is the product when you treat it with the alkaline KMnO4. And next reaction is cold KMnO4 दे सकता है और साथ में देगा hot alkaline KMnO4. So cold KMnO4, you have remembered that the cold KMnO4, this is the addition of the diol in the syn fashion. याद है, देखो इस क्वेश्चन को क्यों दे रहा है, क्योंकि हॉट एंड कोल्ड बस डिफरेंट है, तो डिफरेंट है तो उसमें रिएक्शन भी डिफरेंट है, ठीक है. और hot alkaline KMnO4 same as the oxidative ozonolysis, formation of the adipic acid by the breaking of the bond. बात समझ में आ गया. तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस हम लोग कर चुके हैं, तो बस उसको समझना है कि डबल बॉन्ड टूटता है तो CHO बनता है, CHO बनने के बाद क्या होगा, COOH बन जाता है, ठीक है. सेम यहाँ पे से वही हो गया है. ये रिएक्शन जो है आपको करना है हॉट अल्कलाइन KMnO4 साथ हो गया. ये रिएक्शन करवाए हुए हैं हॉट अल्कलाइन KMnO4 साथ. रिएक्शन क्या होगा, लेकिन याद रखना है यहाँ पे बेंजीन का रिएक्शन नहीं होता है, बेंजीन का रिएक्शन नहीं होगा KMnO4 के साथ. तो दिस इज द एक्सेप्शन. एक्सेप्शन नंबर व्हाट, एक्सेप्शन नहीं है, KMnO4 के साथ बेंजीन का रिएक्शन नहीं होगा. ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस यहाँ पे काम नहीं देंगे. मतलब दो चीज बता रहे हैं यहाँ पे. एक हो गया ओजोन का रिएक्शन विद द इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक हो सकता है, लेकिन हॉट अल्कलाइन KMnO4 में रिएक्शन नहीं होगा बेंजीन के. इसको याद रखना है, ठीक है. दूसरा चीज देखो, ये पार्ट तुम तो याद है ना तुमको, इस पार्ट को ही ऑक्सीडाइज करेंगे हॉट अल्कलाइन KMnO4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, COOH हो जाएगा. क्लियर है. जी सर, नेक्स्ट COOH बनाओ इसको. COOH बनाओ इसको, COOH बनाओ इसको. ये क्वेश्चन में दिया हूँ, आपको करना है खुद ही. याद है, पापेट्स रूल यूज करके बना दोगे, बन जाएगा. ये भी बन जाएगा, ठीक है. बनाना है मतलब बन जाएगा तो बनाना है. हाँ. अब हम लोग पढ़ते हैं बेसिक ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म. एंड इन दिस रिएक्शन मैकेनिज्म इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द बेसिक टर्म्स, जस्ट लाइक दैट सॉल्वेंट होता क्या है, लिविंग ग्रुप होता क्या है, एंड द एनर्जी प्रोफाइल्स दैट इज द reaction coordinate, and stereoselective and stereospecific reaction. So first of all, we have to discuss what is the solvent, and the solvent is of the two types, because majority of the reaction, I'm telling about the majority of the reaction takes place in any chemistry, कोई भी chemistry में, in the solvent phase. सॉल्वेंट फेज में जाकर के रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, बहुत सारे रिएक्शंस. एंड इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉल्वेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज the reaction sometimes depend on the solvent. And the main part is that solvent is divided into the two parts. One is the polar solvent and another is non-polar solvent. Non-polar solvent is that type of the solvent that is not polar, and not polar that means not polar that means zero dipole moment, ठीक है. And whereas the polar solvent that means it is a polar, and the polar that means it has a non-zero dipole moment. And the second thing is that what are the examples of the solvent which are the non-polar solvent. If you see a benzene, hexane, and the carbon tetrachloride, all these are the non-polar solvent, because these compound have zero dipole moments, so these are the non-polar solvent. And the polar solvent is what which has the net dipole moment, and the net dipole moment, that means if you take the example of the water, it is the polar solvent acetone, it is a polar solvent carboxylic acid, it is the polar solvent, right.
पोलर सॉल्वेंट में आपको डायपोल मोमेंट नहीं, नेट जीरो डायपोल मोमेंट नहीं होगा, ठीक है। वाटर इज द पोलर सॉल्वेंट, ये तो पता है। वाटर में बहुत सारे रिएक्शन किए जाते हैं, एक्वस एक्वस एक्वस। द पोलर सॉल्वेंट भी आपको फर्दर डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स। देखो मैं तुमको बता रहा हूँ यहाँ पे कि पोलर सॉल्वेंट तो है ही HFON, और यहाँ भी HFON, लेकिन ध्यान देना है हम क्या करने जा रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे HFON वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, यहाँ पे HFON वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अलग होते हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट अलग होते हैं। अच्छा, what is the polar protic solvent? Polar protic solvent, that means the polar solvent which has proton, which has तो प्रोटॉन का मतलब क्या हो गया? प्रोटॉन तो है, उसमें भी तो प्रोटॉन हो सकता है, ऐसा नहीं कि प्रोटॉन नहीं होगा, लेकिन प्रोटॉन का मतलब क्या होता है? एक्टिव प्रोटॉन, विच हैज एक्टिव प्रोटॉन, विच हैज, ठीक है। प्रोटॉन तो हो सकता है, प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन होता है, और क्या है? This is active proton, and active proton, that means when the hydrogen is attached with the fluorine or oxygen or the nitrogen, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, इनको बोलते हैं फोन, FON, because these three elements are more electronegative, and that's why when the hydrogen is attached to the oxygen, fluorine and the nitrogen, that hydrogen becomes active hydrogen, and so why the active hydrogen if present in the any solvent, we classified it as a polar solvent. Polar solvent, and in a specific way, we have to classify that solvent into the polar protic solvent. Polar protic solvent समझ में आ गया? Protic का मतलब क्या होता है? Active hydrogens. If the hydrogen is not attached to the phone, phone, ये phone आपको याद हो जाएगा, phone आपको याद हो जाएगा, phone है ना, फोन तो है ना ये फोन, ठीक है, याद हो जाएगा फोन, ठीक है। एंड if the hydrogen not attached to the fluorine, oxygen and nitrogen, this will not create active hydrogen or active proton, and this is called polar aprotic solvent. एक्टिव हाइड्रोजन होना, एक्टिव हाइड्रोजन कहाँ होगा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। और एक्टिव हाइड्रोजन कहाँ नहीं होगा? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में होगा, ठीक है। Apart from that, if you look of H2O, hydrogen attached to the oxygen, RH, in which hydrogen attached to the oxygen, NH3, hydrogen attached to the nitrogen. And if you see, if you can compare all these examples, this is not very tough. And if you find out uh, where is the hydrogen in the ROR, there is no hydrogen in the ROR, right? Okay, but in the RCHO, if you find that there is a hydrogen, R have the hydrogen. I am telling about कि ROR में भी हाइड्रोजन है। ROR मतलब क्या हो गया? अल्काइल ग्रुप है, तो अल्काइल ग्रुप में भी हाइड्रोजन है, लेकिन दैट हाइड्रोजन दैट इज अटैच्ड टू द कार्बन, तो फोन पे तो अटैच्ड नहीं है। बात समझ में आ गया? ये सारे एग्जाम्पल हो गए पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के, ठीक है। देखो मैं क्या है ना कि अभी थोड़ा सा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या वो होता क्या है, फिर उसके बाद जब मैं न्यूक्लियोफाइल्स पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको 2-3 चीज एक्सप्लेन करूंगा। बेसिसिटी क्या होता है और न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है। बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी दोनों सेम चीज है कि डिफरेंट है? कब सेम होते हैं, कब डिफरेंट होते हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस ऑफ द solvent, types of the solvent in the organic reaction, ठीक है।
आप हमको कमेंट करना कभी कि सर आप बहुत जल्दी इंग्लिश बोलते हैं, कि स्पीड में नहीं, मॉडरेट इंग्लिश बोलते हैं, मतलब बहुत स्लो इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट्स के यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, और हम ज़्यादा एग्जांपल दे दिए। ठीक है, NH3, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट दैट इज एसीटोन्स। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, DMSO पूछा जाता है, एसीटोनाइट्राइल आता है, एसीटोन आता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या पूछ देगा, ये सब सारे सॉल्वेंट दे देंगे और इसी के बीच में कहीं ना कहीं घुसा देगा वाटर। अब बोलेगा कि इतने सारे जो ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, ठीक है, और कहीं एक पोलर सॉल्वेंट लगा देगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, एंड पूछेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ये तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, अब देखो क्या है ना कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट बहुत कम होते हैं, DMSO, DMF भी होते हैं। DMF आपको सर्च करना है कि DMF, हाँ DMF यहाँ पे दिया हुआ है, DMSO, DMF, एसीटोन एंड एसीटोनाइट्राइल, ये सब कॉमन है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के, ध्यान देना है। अब बोलोगे सर आगे क्या आएगा, मतलब पढ़ाओगे क्या आगे? देखो आगे जब पढ़ाएंगे तो यही सब चीजें आएंगी, SN1 SN2 सॉल्वेंट क्या होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं पैप्स, पाप्स, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, इसको बोलेंगे PPS। ठीक है, PPS मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। देन आफ्टर स्ट्रक्चर्स भी याद रखने हैं, द क्राउन ईथर्स, क्राउन ईथर्स दैट मीन्स, ईथर्स क्या होता है, जब ईथर्स को, मतलब साइक्लिक ईथर्स को इस तरह से अगर मान लो कि रखते हैं, तो देन what happens that the oxygen parts that moves upward, and the alkyl group, the ring that lies in the bottom, that's why these structures, what happens, look like crown ether, crown ether की तरह से behave करते हैं। why these are the important, ये सब important क्यों है, why we are focusing on this crown ether? केमिस्ट्री में ये सब क्या, मतलब ये सब तो बेकार की चीजें हैं, इनका क्या यूज है? देखो अब केमिस्ट्री की बात करते हैं तो ये सब छोड़ दो, मतलब कि जो पढ़ रहे हैं टेक्निकल चीजें, मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है, बॉन्डिंग पढ़ लियो, कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ लियो, ठीक है, कुछ इंटरेक्शन होते हैं आउट ऑफ द कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है, एंड दैट इंटरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, and that leads to the macromolecular chemistry. And in the macromolecular chemistry, what happens, the interactions between the molecules with the another molecule is very different. If you see that uh, if you see that if you have the uh, if you have bacteria that is inside in your body, if you take antibacterial drug, then the antibacterial drug recognize the bacteria inside your body. The thing is that how he recognize that molecule, that bacteria that is residing inside your body. How? Because molecule know where to interact. मॉलिक्यूल में सबसे बड़ा बात क्या है ना कि वो समझ रहा है कि हमको किससे इंटरेक्ट करना है, एंड इट इज द कंपोज ऑफ द इंफॉर्मेशन। मॉलिक्यूल के पास क्या है, इंफॉर्मेशन है। तो मैटर्स इज मोर देन द मैटर, मैटर इज मोर देन द मैटर। मैटर ऐसा नहीं है कि हम जो खाना खा रहे हैं वो हम लोग क्या कर रहे हैं, मैटर के रूप में यूज कर रहे हैं। मैटर के रूप में यूज करें तो हमारा पेट भरेगा, लेकिन इट विल नॉट फंक्शन एज प्रोडक्शन ऑफ द अमीनो एसिड एंड द फंक्शन टू बिल्ड अप द मसल्स। ठीक है, so interaction in the chemistry is very important, and many of the interaction in the chemistry is the non-covalent interaction, and this is lock and key hypothesis. If you can watch it into the uh, surface chemistry, that if these crown ether have the specific size, ठीक है,
and the specific size, in that specific size what happens that I have the lithium, and the lithium has also the specific size 12 crown 4. In this case what happened, the lithium का साइज क्या है, छोटा है, एंड वो जो साइज है मतलब फिक्स हो सकता है, किसे फिक्स हो सकता है, 12 crown 4. अच्छा 12 crown 4 क्या है, 4 represent the number of oxygen atom and 12 represent total number of atom. देखो 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12. तो यहाँ से आपको एक चीज और चीज क्लियर हो रहा है कि आपको अगर बोला जाए कि 12 crown 4 है, उनका स्ट्रक्चर बनाओ, आप बना सकते हो. आप पहले क्या करोगे, 4 ऑक्सीजन लगाओगे, 4 ऑक्सीजन के बाद उसको 2-2 कार्बन से क्या करोगे, जोड़ना शुरू कर दोगे. ठीक है, एंड हाउ विल यू परफॉर्म दैट, ये ऑक्सीजन पहले बना लो 4, 1 2 3 4 बना ली ऑक्सीजन, वेरी गुड. 4 ऑक्सीजन को इस तरह सिमेट्रिकली बनाना है, एंड देन आफ्टर आपको ये जो ग्रुप है, आपको ये ग्रुप को लगा के क्रिएट कर देना है 12 crown 4. And 12 crown 4 has a very specific size, and in that size only the lithium can attached. Not sodium, not potassium, only the lithium. If the sodium and potassium comes and that gap is not as huge, so why the sodium and potassium will not come into the 12 crown 4. And if you see the sodium is very important. सोडियम का भी कुछ ना कुछ साइज है, और इसमें बस सोडियम ही फिट हो सकते हैं, किसमें, 15 crown 5 में. फिर से मैं बता रहा हूँ, 15 crown 5. 5 यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ ऑक्सीजन, 5 बना लेना सर, और टोटल नंबर ऑफ एटम, ठीक है, कितने हैं, 15. तो इसमें सोडियम अटैच हो सकता है. अगर लिथियम आएगा तो लिथियम बाहर निकल जाएगा, यहाँ से अगर लिथियम अगर आता है तो लिथियम बाहर निकल जाएगा इस 15 crown 5 से. तो स्पेसिफिक कोई जो मेटल्स होते हैं, लॉक एंड की क्या होता है, लॉक एंड की हाइपोथेसिस वही होता है कि की का कुछ स्पेसिफिक शेप होता है, वो बस अटैच किससे होता है, that will attach to the lock. And this is a very amazing thing. If you learn the chemistry of the macromolecules, then you can realize that how the RNA and how the DNA is so amazing compound, and how it produces the amino acid, and the use of the amino acid in the bodybuilding, right? Living group, let's discuss a small of that living group. What happens that the OH minus, OH minus, OH minus in this table, if you see OH minus will attach, अगर OH minus अटैक करेगा CH3 पे, यहाँ से आयोडीन निकल जाएगा, आयोडीन निकलने के बाद OH CH3 हो गया. लिविंग ग्रुप की बात कर रहे हैं, यहाँ पे लिव कौन कर रहा है, अगर बोला जाए लिव कौन कर रहा है, लिव यहाँ पे करने वाले हैं, एंड दैट इज आयोडीन. यहाँ से Br, यहाँ से Cl, यहाँ से फ्लोरीन, ठीक है. लेकिन बात ये है कि यहाँ से आयोडीन निकला, ठीक है, Br भी निकला, Cl भी निकला, A भी निकला, बहुत अच्छी बात है. द थिंग इज दैट लिविंग ग्रुप होते क्या है, लिविंग ग्रुप वो होते हैं जो निकलने वाले ग्रुप होते हैं, उनको लिविंग ग्रुप बोलते हैं. विच इज द गुड लिविंग ग्रुप. एंड द थिंग इज दैट यहाँ पे दो चीज आ गया, एक बैड लिविंग ग्रुप, एक गुड लिविंग ग्रुप. एंड हाउ डू यू थिंक दैट द गुड लिविंग ग्रुप विल लिव्स, एंड किसको हम अच्छा लिविंग ग्रुप बोलेंगे, किसको हम अच्छा लिविंग ग्रुप बोलेंगे, ठीक है. अब हमारे घर में अगर मान लो कोई गेस्ट आते हैं, ठीक है, तो चाय पूछते हैं, चाय पी लीजिए, ठीक है, और मिठाई मंगवाएंगे क्यों, उससे अच्छा क्या है, इनको क्या कर देंगे, बिस्किट, बिस्किट दे दिया जाएगा, खा के ये निकल लेंगे, ठीक है. तो
लिविंग ग्रुप मतलब क्या है, जस्ट लाइक ए गेस्ट, है ना। एंड गेस्ट मतलब कि जो स्टेबल गेस्ट हैं, ठीक है, दे हैव अ लॉट ऑफ द मनी, तो स्टेबल गेस्ट है तो आराम से निकल लेंगे, हाँ पता है कि भाई मेरे पास पैसा है, बाकी लोग को पता नहीं। देन स्टेबल, दैट मीन्स स्टेबल आयंस जो होंगे, स्टेबल गेस्ट होंगे, वो पहले निकल जाएंगे, ठीक है। बोलेंगे ये भाई कि मेरा औकात देखो, ठीक है, वो बिस्किट खिला रहा है, ठीक है, चाय भी, कॉफी पी लेंगे बाहर जाकर के, ठीक है। तो स्टेबल आयंस हैव मोर टेंडेंसी। तो स्टेबल आयंस कैसे बन रहे हैं, देखो यहाँ पे स्टेबल आयंस निकलने के बाद चेक कर रहे हैं कि वो स्टेबल है कि नहीं। गेस्ट को घर से निकलने के बाद चेक करो कि वो स्टेबल है कि नहीं, ठीक है भाई, चेक करो कि वो जाके कहाँ पे जाकर के कॉफी पी रहा है। तो हम गए, देखे भाई, हाँ चलो भाई, ये गेस्ट जो है मतलब सीसीडी जा रहे हैं, सीसीडी गए, वहां जाके कॉफी पी रहे हैं निकलने के बाद, ठीक है। और ये निकले बहुत जल्दी, क्यों निकले, क्योंकि इनका टेस्ट खराब हो चुका था, है ना। फिर यहाँ पे सेम चीज है, आयोडीन निकला, ठीक है, कौन निकाला, ओएच निकाला, जो भी है ओएच निकला, नहीं हम आयोडीन की बात करें, आयोडीन निकला एज अ लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो आयोडीन निकलने के बाद देखा गया जाकर के आयोडीन कहाँ पे है, ठीक है, जाके पता चला कि आयोडीन है स्टेबल हो चुके हैं। आयोडीन स्टेबल क्यों है, क्योंकि आयोडीन पे ध्यान देना, आयोडीन का साइज बड़ा है, आयोडीन का साइज बड़ा है, चार्ज क्या है, निगेटिव है, साइज बड़ा, चार्ज निगेटिव, उसको क्या करता है, स्टेबल करता है। बात समझ में आया, ठीक है। कोई भी एनायन में अगर सेम चार्ज अगर देखा जाए, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब पे निगेटिव चार्ज है, बट द थिंग इज दैट विच आयंस इज अ स्टेबल, एंड द थिंग इज दैट कौन सा आयन यहाँ पे स्टेबल होगा, तो ध्यान देना है कि यहाँ पे स्टेबल वो होंगे जिस निगेटिव चार्ज में एटम्स का साइज अगर बड़ा रहेगा, तो वो क्या करेंगे, जो निगेटिव चार्ज को डिस्पर्स कर देंगे, डिस्पर्स करने का मतलब क्या कर देंगे, फैला देंगे, ठीक है, फैला देंगे। बात समझ में आ रहा है ना, दैट इज अ डिस्पर्सन ऑफ द नेगेटिव चार्ज। डिस्पर्सन होता क्या है, फैलाना। आग यहाँ पे जल रहा है, तो उसका जो गर्मी हमको यहाँ तक आ रहा है, and that is the heat is dispersed from one region to the another region comes to my contact, ठीक है। तो इसमें यही समझना है कि फ्लोरीन इज नॉट स्टेबल आयन, एंड फ्लोरीन तुम्हारा स्टेबल आयन नहीं है बस, और उसको उससे ज़्यादा कहानी मत बनाओ, ज़्यादा आसान से समझो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेट्स मूव एंड आई विल फिनिश this topic, and I think that in the next lecture we will complete the living group, and we will comes to the alkyl halide after one to two lectures, right? Chaliye, we have to finish. Thank you.